students, we was doing value based questions and now we are continuing that. Question number 6, value based question में question number 6 है ये. Veena and Seema were coming home after attending the birthday party of their classmate Beena. ये बीना है, वो वीना है. Beena's mother had prepared a large number of delicious dishes for this occasion. मुंह में पानी आ रहा है ये सुन के. A lot of soft drinks like Coca-Cola and Pepsi, etc. were also served. The homemade cake and ice cream were also there in plenty for everyone. Veena and Seema ate a lot of food, cake and ice cream. वो तो ठीक है, मुफ्त में मिल रहा होगा, खा गई होंगी ज्यादा एक्स्ट्रा. They also, और वैसे भी मजे में चल रहे होंगे. They also had many soft drinks each. Actually, Seema liked the food too much, so she ate too much. On reaching home, Seema started feeling uncomfortable. She also got pain in the stomach. Seema is a student of class 10 and her mother, Mrs. Sarla, is a teacher in the same school who teaches science to class 10. अच्छा, पढ़ाती भी उसकी मम्मी है उसकी क्लास को. चलो फिर तो और बढ़िया है. Mrs. Sarla told her daughter Seema that she had 3 substances A, B, C in the kitchen which can be consumed safely. The substances A, B, C give blue color, orange color and green color respectively. Respectively with the universal indicator. अच्छा, जो ब्लू कलर दे रहा है इट मींस वो बेस है, जो ऑरेंज कलर दे रहा है इट मींस वो एसिडिक है, और ग्रीन कलर जो दे रहा है वो न्यूट्रल है. Mrs. Sarla asked Seema which substance would she like to take in order to obtain relief from the pain and why. Seema made the right choice and explained the reason to her mother. Okay. अच्छा, तो सीमा की जो मदर है उसने भी मतलब ये नहीं देखा कि उसको दर्द हो रहा है, उसने भी उसको आगे से साइंस का क्वेश्चन पुट कर दिया कि हमारे पास किचन में 3 सब्सटेंसेस हैं ए बी सी. ए जो है वो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर को ब्लू कर रहा है, बी जो है वो ऑरेंज कर रहा है और सी जो है वो ग्रीन कर रहा है. तो वो कौन सा सब्सटेंस लेना पसंद करेगी? उसका पेट दुख रहा है आफ्टर ईटिंग टू मच. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, you have to raise hand. Okay, then I will ask. What is the general name of the condition which is faced by Seema? कौन सी कंडीशन सीमा फेस कर रही है? अमित. Sir, acidity. Sir, acidity. Acidity. Acidity because of the overeating. जिनका माइक नहीं वर्क कर रहा वो they can also reply in the chat box. वो मैं देख लूंगा chat box में. Okay. As Guniti replied, acidity. Okay, Guniti, very good. Okay, second question. Which substance is produced in excess in stomach that causes the above condition? Sir, HCl. Japanjot is saying HCl, yes. Because our stomach produces HCl when we consume food. Then at that time, our stomach produces HCl in order to digest that food. Okay. So when we eat too much, then the excess of HCl is produced in the stomach. And that HCl start causing burning in our stomach. Why? Because that acid start reacting with the stomach balls. Okay. So, and that condition is called as the acidity. C. What is the general name of substance which are usually taken to obtain relief from the above condition? Milk of What magnesia. substance? Sir, milk of magnesia. Milk of magnesia. You can use baking soda. Eno. Okay, there are a lot of options, but they are talking about the remedy, kitchen remedy. क्योंकि किचन की बात हुई है ना, तो किचन में क्या पड़ा होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हो सकता है या बेकिंग सोडा भी हो सकता है. मेरे को लगता है बेकिंग सोडा ही होगा. ओके, क्योंकि किचन से ज्यादा रिलेट बेकिंग सोडा करता है. हालांकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किचन में यूज नहीं होता, बट एज अ मेडिसिन यूज होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हो सकता है. ओके,
but there the substance is related to the kitchen, so that's why I will choose baking soda over milk of magnesia. Okay, हालांकि ये भी हो सकता है कि उन्होंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अपने किचन में रखा हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, तो उसको गलत नहीं माना जाएगा. ओके, बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. डी, व्हाट इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस ए सब्सटेंस ने ब्लू कलर का किया है ना उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर को, तो ए क्या होगा? बेस. वेरी गुड अमित. व्हाट इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस बी? Lavanya, what will be the nature of substance B? Lavanya, you have to speak. Okay, Devanshi. Sir, acid. Acid, because substance B changed the universal indicator color to the orange color. And what is the nature of substance C? Sir, C. What is the nature of substance C? Neutral. Indicator green in color. It means the substance C will be a neutral substance. Now next E. Which substance A, B or C do you think was chosen by Seema to get relief from the stomach pain and why? अगर सीमा ध्यान से पढ़ रही होगी क्लासेस में तो उसको पता होगा कि कौन सा सब्सटेंस चूज करना है. कौन सा सब्सटेंस चूज करना है दिवांशी? Sir, B. बी. sir, A. और ए. ए बिकॉज बेस चूज करना है ना, एक्सेस ऑफ एसिड पेट में बना होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बी ए चूज करना है. बेस ए इज बेसिक इन नेचर. दिवांशी क्या हो गया? ए इज बेसिक इन नेचर, सो यू हैव टू चूज ए. ओके, so okay, very good. Next, what values are displayed by Seema in this incident? She is very you can say very, she is very curious about her science concepts, so that's why she can also apply that concepts in our life, in her life as well as in others life also. Okay, curious होना, उसका knowledgeable होना, ठीक है. और क्या कह सकते हो? कई सारे आपके पास कैरेक्टर निकल के आ सकते हैं. ओके, सर केयरलेस भी. व्हाट? सर केयरलेस भी है. केयरलेस, ओके, ठीक है. इतना केयरलेस खाना भी है. चाहिए. हाँ, उसको पता होना चाहिए था कि इतना नहीं खाना चाहिए बिकॉज दैट कैन कॉज एसिडिटी इन हर स्टमक. ओके, वेरी गुड. केयरलेस भी है. पता कोई नहीं, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰਲੈਸ. ਚਲੋ, क्वेश्चन नंबर 7. Rohan and Vikram are very good friends. Rohan studied in class 9 whereas Vikram studied in class 10. Okay, during a dental checkup in school, Rohan was told that tooth decay had just started on the top of his large back teeth, where one tooth touches another. He also heard the dentist telling his assistant that pH change is the cause of tooth decay. Rohan could not understand anything because class 9th में, अभी class 10th में गया है नहीं. तभी कहते हैं साइंस पढ़ने के फायदे भी बड़े हैं. तो 9th में वो अभी तक वो कंसेप्ट ही नहीं आया. चलो क्या पता 9th में वो साइंस अच्छे से पढ़ता हो, बट अभी 9th में कंसेप्ट आया नहीं. He told everything to the Vikram. Vikram 10th में है और ये अच्छे से पढ़ने वाला बंदा होगा. Okay. Vikram could understand that what had happened. He explained everything to Rohan and also gave him advice to prevent further tooth decay. So, okay. Question number 1. What is meant by the tooth decay? What do you meant by the tooth decay? Arshdeep Singh. What do you mean by the tooth decay? Ashu. Japanjot. Sir, when bacteria acts on the Bacteria and acids
act on tooth and corrode the tooth enamel. जो टूथ की आउटर कवरिंग होती है, टूथ कैसा बनाए ऐसे, ये जो टूथ की आउटर कवरिंग है, इसके ऊपर वो अटैक करते हैं एसिड जो माउथ में बनता है प्लस बैक्टीरियाज, एंड दे करोड this tooth enamel, and this enamel start turning black. Okay, that is the meaning of tooth decay. Very good. B, what type of microorganisms are responsible for causing tooth decay? अभी बोल दिया ना आपने, बैक्टीरिया. Sir, bacteria. How does tooth decay start? Gunidi, how does tooth decay start? Sir, when pH increases. When pH decreases, क्या कर रहा है? Decrease मतलब एसिडिक मतलब डिक्रीज नहीं होती. स्केल भूल गया. 7 से बिलो एसिड और 7 से अबव बेसिक. Okay, when the pH of mouth start decreasing level 7 and you remain that pH in your mouth, अगर आपने वो वाला pH रिमेन भी रखा, रिटेन भी रखा अपने माउथ में, तब प्रॉब्लम है. वैसे तो pH जाता ही है 5, 4, 5 चला ही जाता है जब हम खाना खाते हैं उसके बाद, ठीक है. बट प्रॉब्लम तब है जब आप उसको रिटेन रखते हो, उसके बाद अपना माउथ को रिंस नहीं करते, ब्रश नहीं करते प्रॉपरली. ओके, रिंसिंग आपको खाने के बाद रिंसिंग करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम. खाने के बाद क्या, वैसे भी दिन में 10-15 बार वैसे रिंसिंग कर लेनी चाहिए माउथ के बाद, माउथ की. ओके, क्योंकि आपका जो माउथ है उसका पीएच 5 के अराउंड मेंटेन नहीं रहना चाहिए, बिकॉज उस पीएच पे बैक्टीरिया ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है, और साथ में जो माउथ में जो टूथ एनामल है उसको डिके करते हैं, और साथ में आपका जो एसिड बना होता है माउथ में वो भी उस एनामल के साथ रिएक्ट कर देता है. ओके, क्लियर? As Gunidhi is saying, acid acts on tooth enamel helped by bacteria, which leads to decrease in pH of our mouth. Okay, तो टूथ डिके स्टार्ट कैसे होता है? जब आपका pH बिलो 5.5 चला जाता है और आपका बैक्टीरिया भी उस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट करना शुरू कर देते हैं, और ये pH ज्यादा देर तक रिटेन रहता है इन दी माउथ. ओके, क्वेश्चन नंबर B. What is meant by saying that pH change is the cause of tooth decay? सर न्यूट्रल से एसिडिक होने लगा. न्यूट्रल से एसिडिक होना is the cause of tooth decay, because acidic pH पे आपका जो टूथ एनामल की कोरोडिंग है वो स्पीड अप हो जाती है. बैक्टीरिया स्टार्ट एक्टिंग मोर एंड मोर ऑन द टूथ एनामल. E. What advice do you think Vikram gave to Rohan to prevent further tooth decay? आप विक्रम की जगह होते, आप क्या एडवाइस देते उसको? आपको तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. रिंसिंग करे या बेकिंग सोडा यूज करे. टाइम टू टाइम रिंसिंग हो जाए, दिन में खाना खाने के बाद रिंसिंग हो, 2 टाइम ब्रश करे, मॉर्निंग एंड इवनिंग बिफोर स्लीपिंग. ओके, बस इतना का सही एडवाइस देंगे. मैं भी उसको ये एडवाइस देता, और साथ में ये बोलता कि शुगर कम खाया कर, अगर खानी भी है तो उसके बाद माउथ को प्रॉपर रिंस किया कर. ओके, शुगर सब्सटेंस कम कंज्यूम करने हैं. ओके, तो मेरी तरफ से भी यही एडवाइस है. नेक्स्ट, व्हाट वैल्यूज आर डिस्प्लेड बाय विक्रम इन दिस एपिसोड? ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया कि वो साइंस को अच्छे से पढ़ता है, कंसेप्चुअल नॉलेज है, इम्प्लीमेंटेशन भी है. ओके, हेल्पिंग नेचर है. ओके, ये सारा आ गया उसके वैल्यूज में, विक्रम की वैल्यूज में. ओके, सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, very good going, but others are not, all of the students are participating, so all I have to participate. Okay, question number 8. Mukesh is a student of class 10. He lives in a big house. There is a big iron gate in the boundary wall of his house, which has installed about 1 year back. For the last few days, Mukesh has been observing that red-brown patches have appeared at some of the places on the gate.
When Mukesh brought this development to the notice of his family, his sister, who is in class 6, said that the iron gate should be cleaned properly with sandpaper to remove red brown patches and then smeared with oil or grease to protect it from further damage. Mukesh did not agree with her and suggested a different treatment for the iron gate. Mukesh's father also agreed with his plan of action. Okay, मुकेश और उसकी छोटी बहन है, तो छोटी बहन ने कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं, रेड ब्राउन पैचेस को साफ करके उसके बाद उसको ऑयलिंग कर देते हैं और ग्रीजिंग कर देते हैं। वैसे ये भी ठीक है, बट ऑयलिंग और ग्रीजिंग से वो वही है ना कि आपको आयरन को डैमेज से बचाने के लिए ऑयलिंग ग्रीजिंग कहाँ करनी होती है? वो तो वहां करनी होती है जहां पे आप चाहते हो कि फ्रिक्शन भी कम रहे और रस्टिंग भी ना हो। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि गेट पे फ्रिक्शन बढ़ भी जाए तो क्या होगा, तो पेंटिंग बेस्ट है। तो मुकेश ने पक्का पेंटिंग सुजेस्ट करी होगी। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, what are the red brown patches on the surface of the iron gate? Name the process which leads to the formation of these patches. Devanshi. Sir, the red patches are of rusting. रस्टिंग नहीं, रस्ट। रस्टिंग तो फिनोमिना को बोलते हैं। द प्रोसेस विच लीड्स टू, प्रोसेस जो है वो रस्टिंग है ना? क्लियर? उसके बाद अगर आपको रिएक्शन भी पता है तो आप रिएक्शन लिख दोगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, उसको लगेगा एग्जामिनर को कि इसको बहुत अच्छे से आता है। चलो बी, what conditions are necessary for the formation of red brown patches on the iron gate? Suniti, what conditions are necessary for the formation of red brown patches on the iron gate? कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें वो रेड ब्राउन पैच फॉर्म होते हैं ऑन द गेट? देवांशी। जपन जो कौन सी कंडीशन है? मॉइस्चर और सर एयर और एयर, वाटर के कांटेक्ट की वजह से। हाँ, क्योंकि एयर में होती है ऑक्सीजन, वाटर, तभी आयरन उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रेटेड यस आयरन ऑक्साइड which is called as the rust, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं रस्टिंग। What harm can be done if this gate having red brown patches is allowed to remain as such for long time without any treatment? क्या होगा, वो रस्टिंग होती जाएगी, रस्टिंग आयरन के जिस पार्ट पे रस्टिंग होती है ना वहां से वो आयरन निकल जाता है, क्योंकि रस्टिंग जो है वो भुरभुरी होती है, तो वहां से क्या होगा, करोजन की वजह से आयरन का गेट धीरे 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 खत्म ही हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा पूरा का पूरा, उसमें होल्स क्रिएट हो जाएंगे गेट में। ओके, तो उसकी ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करोगे उतना ही अच्छा है। एक्सप्लेन व्हाई दिस आयरन गेट कैन नॉट बी स्मीयर्ड विद ऑयल। ओके, स्मीयर्ड विद ऑयल का कोई बेनिफिट होगा इससे? आपको क्या लगता है? स्मीयर्ड विद ऑयल ग्रीस टू प्रोटेक्ट इट फर्दर डैमेज, वो उसकी लुक नहीं खराब हो जाएगी? चलो ग्रीस लगाने से प्रोटेक्ट तो हो जाएगा, बट लुक खराब हो जाएगी। वैसे भी अगर थोड़ा बहुत भी पानी डाला या तो विद टाइम वो धीरे धीरे वो साफ हो जाएगा, वो दोबारा से अंदर आयरन एक्सपोज हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ये मेथड नहीं सूट करेगा। ट्रीटमेंट क्या होना सर चाहिए? पेंटिंग ट्रीटमेंट सूट होती है, करेगा। हाँ, पेंट कर दो उसको। ओके, जैसे जो गेट पेंट्स आते हैं वो वाला पेंट कर दो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ऑयल और ग्रीस से वैसे भी अगर मान लो आप चलते टाइम आप उस गेट में थोड़ा बहुत टच होते हो तो आपके कपड़ों पे लगेगा, आपके हाथों पे पैरों पे लगेगा, उससे फिर आपके वैसे भी तो कपड़े वगैरह खराब होंगे। तो ये जो है ये मतलब रिकमेंडेबल नहीं है ऑयल और ग्रीस। ओके, हालांकि उसकी बहन ने भी थोड़ा बहुत रस्टिंग को अच्छे से समझा है इसलिए उसने ये सजेशन करी है, बट पेंटिंग इज द बेस्ट मेथड। E, what treatment do you think was suggested by Mukesh to protect the iron gate from the further damage? वही painting. Okay, how does this treatment work to protect the iron gate? Because it cut the contact of iron with atmosphere and moisture. पेंटिंग करने से क्या होता है, अगर आप इसके ऊपर पेंट कर रहे हो, ये मान लो आयरन का गेट है,
तो क्या हो रहा है, आपके इसके अंदर के आयरन का कांटेक्ट ब्रेक कर रहे हो फ्रॉम वाटर एंड ऑक्सीजन present in its surrounding, and this is how the gate got protected. Okay, so this is the last question. Question number 9. Arun's elder sister rama 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 is getting married next month. Okay, congratulations to Arun. His father and mother were taking Rama to a jeweler's shop to select and buy a gold jewelry for this occasion. Arun instead insisted on going with them to the jeweler's shop. The family saw a number of jewelry pieces. Rama liked one of the gold necklaces very much and wanted to buy it immediately. The jeweler said that this necklace had made of 22 karat gold. Just when the Arun's father was about to make a payment for this necklace, Arun stepped in. He asked the jeweler to show the hallmark on this gold necklace. आपको पता है ये हॉलमार्क क्या होता है? Do you know what is the meaning of hallmark? कभी ऐड देखी है? Yes, sir. हॉलमार्क वाली टीवी पे Yes, sir. क्या होती है? क्या होता है हॉलमार्क? बताओ, पहले एक्सप्लेन करो थोड़ा, देवांशी. एनीबॉडी जिसको पता है थोड़ा एक्सप्लेन करो, प्लीज स्पीक अप. रमनजीत, व्हाट इज द मीनिंग सर ऑफ ये एक हॉलमार्क? ऐसा मार्क होता है कि ये बताता है कि मतलब हमारा जो गोल्ड है वो प्योर है हमारा गोल्ड. असली है यस, हाँ, असली नहीं है, मतलब ये बताता है जैसे उसने 22 कैरेट क्लेम किया ना ज्वेलर ने, तो अगर हॉलमार्क लगा होगा 22 कैरेट वाला तो इट मींस वो ऑथेंटिसिटी है कि जो ज्वेलर बोल रहा है वो सच है, क्योंकि बोलने का तो वैसे कोई प्रूफ ही नहीं है ना, हॉलमार्क तो प्रूफ होता है. और ये हॉलमार्क लगाता कौन है ज्वेलरी के ऊपर? इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, IBS. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन, ओके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है. ये सारे के सारे ऐसे वाले काम इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, IBS, ये देखता है सारा काम. ये ज्वेलर्स क्या करते हैं? ज्वेलरी बनाते हैं, क्लेम करते हैं कि ये 22 कैरेट की है, उसके बाद हॉल मार्किंग के लिए भेजते हैं. वो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, 100-50 जितने भी लेते होंगे, मेरे को नहीं पता अभी, ठीक है. उस बेसिस पे वो उसके ऊपर हॉल मार्किंग करके वो फिर रिटर्न करते हैं ज्वेलर्स को, और ज्वेलर्स आगे भेज सकते हैं, ठीक है. अगर हॉल मार्किंग के बिना आप लोगे तो वो तो फिर आप ज्वेलर की जुबान पे हो, तो ज्वेलर जो बोल रहा है वो सच है, वो आप ये मान रहे हो. बट अगर आप हॉल मार्किंग वाला ले रहे हो तो उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऑथेंटिसिटी है कि ये 22 कैरेट है, क्योंकि उन्होंने चेक कर लिया हुआ है, ओके. तो इसलिए जितनी भी ज्वेलरी परचेज करते हैं वो हॉलमार्क वाली ही परचेज करते हैं. हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कॉस्ट में फर्क आए, जैसे वो बोल रहा है सेम नेकलेस, जिस नेकलेस की वो बात कर रहे हैं, मान लेते हैं वो 50,000 में मिल रहा था उन्हें, ओके, बट हो सकता है हॉल मार्किंग के बाद वो 50,000 में ना मिले उनको, अगर गोल्ड प्राइस सेम रहता है ऑन दैट डे ऑल्सो. हो सकता है कि वो 51,000 में मिले, क्योंकि 1,000 वो चार्जेस लेगा हॉल मार्किंग करवाने के. अगर आपका जो ज्वेलर है वो सच बोल रहा है तो उसको हॉल मार्किंग करवाने के लिए भी थोड़ा बहुत पेमेंट करना पड़ता है, तो हो सकता है वो 400-500, 700, 800 थोड़ा अप कर दे प्राइस, क्योंकि उसने हॉल मार्किंग करवा के आपको दिया है वो जो भी आप ले रहे हो ऑर्नामेंट, ओके, क्लियर. बट हॉल मार्किंग से क्या होता है, आपके पास एक ऑथेंटिसिटी है, एक गारंटी है कि ये 22 कैरेट बोल रहा था तो ये 22 कैरेट ही है, क्योंकि हॉलमार्क के ऊपर लिखा होता है उन्होंने, ओके. दिखाऊं आपको हॉलमार्क कैसा होता है? गोल्ड देखते हैं यहाँ पे आपको, ये देखो, ये लिखो, ये होता है ना 916. देखो, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 20, ओके. प्योरिटी ऑफ गोल्ड यहाँ से 916, ये एक तरह का परसेंटेज है, 91.6%, ओके.
उसके बाद एसए सेंटर, उसके बाद जूलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये यहाँ पे होता है। ये पिक देख रहे हो ना आप साइड में, ईयर ऑफ हॉल मार्किंग, हॉल मार्किंग का ईयर भी लिखा होता है साइड में। तो ऐसे हॉल मार्किंग होती है। ओके, एंड इट विल प्रोवाइड यू एश्योरिटी। ओके, चलो आगे बढ़े। उसके बाद he asked the jeweler to show the hallmark on this gold necklace. The jeweler told him that this necklace is yet to be sent to the hallmarking laboratory for testing and stamping. Arun asked his father not to buy this necklace until the jewelers get it hallmarked. The jeweler then asked for 1 week's time to get the necklace hallmarked. Meanwhile, Arun explained the need of hallmarking of gold jewelry to his family, जैसे मैंने अभी आपको बताई। When Arun and his family returned after 1 week, the necklace carried hallmark. They also obtained hallmark certificate and a proper receipt from the jewelers before paying money and taking delivery of the necklace. Rama, sorry, मेरे मुंह से रामा निकल रहा है बार बार। Rama was very happy to get this necklace. How many carats is a pure gold? Why are ornaments not made of pure gold? अरे अब बोलो, प्योर गोल्ड की कितनी कैरेट होती हैं? 24 कैरेट होता है। सर 24 कैरेट। ओके, 22 कैरेट का मतलब क्या है कि उसमें 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड होंगे और 2 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी होगा। ओके, टोटल 24 कैरेट ही होता है। 24 कैरेट यहाँ पे वेट के लिए है। जो डायमंड के लिए कैरेट होता है वो डायमंड का वेट, सॉरी, जो गोल्ड में कैरेट होता है वो प्योरिटी के लिए होता है। डायमंड के लिए भी कैरेट यूज होता है वर्ड, बट वो वाला कैरेट वेट के लिए होता है। कैरेट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वेट। ओके, तो यहाँ पे गोल्ड जो है वो परसेंटेज प्योरिटी, कैरेट जो यहाँ पे यूज हो रहा है ये परसेंटेज प्योरिटी के लिए होता है। 24 कैरेट जो है वो प्योर गोल्ड के लिए होता है। ओके, 22 कैरेट का मतलब है उसमें 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड के लिए 2 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी है। मतलब अगर 24 ग्राम गोल्ड लोगे ऐसा, उसमें से 22 ग्राम गोल्ड है, 2 ग्राम इम्प्योरिटी है। ओके, 22 कैरेट गोल्ड का मतलब ये है। वट और ये ऑर्नामेंट्स प्योर गोल्ड के क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि प्योर गोल्ड सॉफ्ट बहुत होता है। ओके, तो इजिली वो जो है वो उसकी डिफॉर्मेशन बड़ी इजिली हो जाती है, तो वो आपका जो खराब हो जाएगा ना। जैसे मान लो आपने गले में नेकलेस पहना हुआ है, कोई आया उसने थोड़ा सा खींचा वो नेकलेस, उसकी शेप ही बिगड़ गई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए प्योर गोल्ड से ऑर्नामेंट नहीं बनते। व्हाट इज मेंट बाय 22 कैरेट गोल्ड, मैंने अभी बताया आपको। What can be dishonest jeweler do to earn more profit from gold jewelry? सर पिछले का सेकंड पार्ट एक बार बता दो। ऑर्नामेंट प्योर गोल्ड से इसलिए नहीं बनते क्योंकि प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। ओके, एंड इट कैन चेंज शेप ऑन अप्लाइंग अ लिटिल बिट फोर्स। जैसे आपने थोड़ी बहुत फोर्स लगाई उससे वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। आप मान लो क्या बोलते हैं पंजाबी में, कड़ा होता है ना, कड़ा कड़ा लेके आ रहे हो, ओके, सोने का, आपने थोड़ा सा उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसकी शेप ही चेंज हो गई, अब वो ऐसा बन गया, कितना भद्दा लगेगा। फिर उसको ठीक करवाने जाओगे। प्योर गोल्ड का ये प्रॉब्लम है। अगर इसमें ये 22 कैरेट गोल्ड या 20 कैरेट गोल्ड का बना होता, उससे क्या होता है, जो इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, वो इम्प्योरिटी कौन सी ऐड करते हैं? या तो वो सिल्वर ऐड करते हैं या तो वो कॉपर ऐड करते हैं। और इस इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। फिर वो इजिली अपनी उसकी शेप आप डिफॉर्म नहीं कर सकते कि हाथ से आपने दबाया उसकी शेप डिफॉर्म होगी। ओके, ऐसा नहीं होगा। फिर गॉट इट? गुंतास बोल रहा हूँ, जपनजोत। यस सर। What can a dishonest jeweler do to earn more profit? वही है कि वो 22 कैरेट बेच के 20 कैरेट गोल्ड दे दे उनको, 18 कैरेट गोल्ड दे दे। ओके, तो ऐसे धोखाधड़ी होती थी पहला, जब तक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिस नहीं आया था। ओके, व्हाट इज हॉलमार्क? Which government organization control the hallmark scheme for jewelry in the India? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अभी मैंने बताया ना, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, हॉलमार्क क्या है? हॉलमार्क इज दी, क्या कह सकते हो, इट इज अ स्टैम्प ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द गोल्ड। ओके, चलो ये नई चीज सीखने को मिली होगी शायद आप में से कुछ लोगों को।
Why should we buy only hallmarked jewelry, gold jewelry? Because it is the strength of authenticity. Okay. What values are displayed by Arjun in this episode? Arjun is very knowledgeable. उसको ये Bureau of Indian Standard वाला भी पता था. Point. Okay. नहीं तो हो सकता है कि उसको ये पता होता कि 24 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है, 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है, बट उसको ये ना पता होता कि इसके लिए गवर्नमेंट भी अप्रूव करती है, गवर्नमेंट की तरफ से मोहर भी लगती है कि हाँ भाई ये पक्का यही है. ओके. बट ये भी उसको पता था. ओके. और अब आप लोगों को भी पता है इस क्वेश्चन के बाद, है ना. तभी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. सो दैट्स इट फॉर टुडे.